Hello everybody, how are you? Today we come to our chapter Sources of Food. This is the first chapter of class 6th. We eat food every day. Why do we eat food every day? What is the meaning of food? These are the common questions that come in our mind. Why we need food? See, हमने देखा कि कार में फ्यूल डालते हैं हम, तो कार चलने लगती है. वो फ्यूल किस फॉर्म में होता है? पेट्रोल की फॉर्म में होता है. इन द सेम वे वी ऑल्सो नीड फ्यूल. हमारा फ्यूल किस फॉर्म में होता है? फूड की फॉर्म में. सो हाउ डू वी डिफाइन फूड? Food is the fuel needed our body, and for what purpose is it needed? For energy. We need food for providing for energy, for nutrients, and for protection from our diseases. See, what are nutrients actually? Nutrients are the substances that are present in the food. See, हमने कोई फूड लिया, सपोज हमने वीट खाई, हमने चपाती खाई. चपाती में क्या है? वीट है. और वीट किस न्यूट्रिएंट से बना है? कार्बोहाइड्रेट से. तो हम कैसे कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स के कितने टाइप्स हैं? सी, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स. if suppose I am giving you one example. if a laborer is there, आप बताइए लेबरर को कौन से टाइप का न्यूट्रिएंट चाहिए ज़्यादा? उसको चाहिए मोर कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए. तो कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एज एनर्जी गिविंग फूड्स. इफ़ अ प्रेग्नेंट वुमन इज देयर, उसको प्रोटीन्स चाहिए ज़्यादा. किसके लिए? डेवलपिंग बेबी के लिए. तो देयर आर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फूड, एंड द न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड आर nutrients are required for growth and for maintenance and repair of the body tissues. Now what are tissues actually? Tissues are the our body is made up of cells, trillions of cells. Suppose our body are made up of cells. When many cells are combined, it form a tissues, and when tissues are combined, it forms a organ. See, this is the organ, and stomach is the organ, and if we take respiratory system example, then esophagus is the organ, and these organs combine to make a organ system, then whole organism is made. After that we come to the food variety. In the India there are many states, and there are many varieties of the foods. Rice, for example, in South India, rice is there. In the Punjab, सरसों का साग, मक्की की रोटी is there. There are many different varieties of foods, you know. तो ये फूड की जो डिफरेंट varieties है, वो डिफरेंट चीज़ों से बनी हुई है. डिफरेंट ingredients होने चाहिए. तो what is defined as ingredients? How do we define ingredients? Ingredients are the raw materials needed to make food. अब जैसे हमने अगर राइस बनानी है, राइस के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए? राइस के लिए हमें चाहिए रॉ राइस एंड वाटर, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज टू इंग्रेडिएंट्स वी विल मेक राइस. सो द फूड वी प्रिपेयर इज राइस, एंड द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड आर रॉ राइस एंड वाटर. So what are ingredients? I think it is clear to you. Now these ingredients are come from different sources, different animal source and a plant source. Suppose wheat is this. If we take an example of wheat, it comes from plants or animals? It comes from plants. If we take an example of milk, then it is an animal source. Now after that we come to food from plants. We all know that plants prepare food by the help of photosynthesis. Now how this photosynthesis work? ये photosynthesis actually है क्या? देखो आप देखिए photosynthesis में photo क्या है? Photo is the light and synthesis is the preparing food. अगर हम इस वर्ड को स्प्लिट करें तो हम देखते हैं लाइट की हेल्प से फूड को प्रिपेयर किया गया. दिस इज कॉल्ड एज अ फोटोसिंथेसिस. अब प्लांट्स में ऐसा क्या है कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती है और हम नहीं कर सकते? सी, हमारी बॉडी, मैंने अभी आपको बताया, हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं.
बहुत सारे सेल्स हैं। ऐसी प्लांट बॉडी में, प्लांट में भी बहुत सारे सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। अब प्लांट ने क्या किया, प्लांट के जो, अगर हम एक सेल देखें तो प्लांट के सेल में ना क्लोरोप्लास्ट होते हैं, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है विच इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। अब ये जो क्लोरोफिल है ना, ये क्लोरोफिल क्या करता है, जो सनलाइट है, सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं, और विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, water comes from soil, with the help of carbon dioxide and water it prepares food। अब हम क्यों नहीं फूड प्रिपेयर कर पाते, क्योंकि हमारी जो सेल्स हैं, हमारी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इसीलिए वी कैन नॉट प्रिपेयर फूड। एंड प्लांट्स आर ऑफ ग्रीन कलर, वी आर नॉट, बिकॉज ऑफ सेम रीजन, क्लोरोफिल गिव्स द प्लांट्स ग्रीन कलर। अब हमने देखा प्लांट्स ने फूड प्रिपेयर कर लिया विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। नाउ प्लांट्स ने जो फूड प्रिपेयर किया, प्लांट्स प्रिपेयर मोर फूड, जितना उसको चाहिए उससे ज़्यादा उसने फूड प्रिपेयर किया। अब जितना चाहिए उससे ज़्यादा करेगा तो फिर बाकी फूड स्टोर हो जाएगा, एंड दैट स्टोर फूड इज़ यूज्ड बाय अस। जैसे कि अगर हम कैरेट प्लांट को देखें, कैरेट प्लांट में हम रूट का पोर्शन खाते हैं, हमने रूट खाई कैरेट में, तो इस रूट को हम क्या कहेंगे, इस रूट को हम कहेंगे कि ये कैरेट का एडिबल पार्ट है। एडिबल पार्ट अब होता क्या है, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट वी ईट इज कॉल्ड एज द एडिबल पार्ट। अब जैसे अगर हमने स्पिनच देखी, तो स्पिनच में हम कौन सा पार्ट खा रहे हैं, हम लीव्स खा रहे हैं, तो जौन सा पार्ट हम खा रहे हैं उसको हम कहेंगे एडिबल पार्ट। Now you understand what is edible? The part we eat is called as edible part. Now have you seen your mama to grow sprouts? कभी आपकी मम्मा स्प्राउट्स ग्रो करती है, वो कैसे करती है और वो क्यों करती है? See, sprouts are so nutritious, sprouts are very nutritious, और उसके अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, विटामिन्स। अब वो ग्रो कैसे होते हैं स्प्राउट्स? हमने मूंग दाल ली, मूंग दाल को हमने वॉश की, वॉश करके हमने उसे बाउल में कुक कर दिया, उसको एक बाउल में डाल के रखा, फिर हमने उसको ड्रेन कर दिया। ड्रेन करने के बाद नेक्स्ट डे जब हमने ड्रेन किया उसको मॉइस्ट क्लॉथ, मॉइस्ट क्योंकि उसको एनवायरनमेंट चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर चाहिए, हम वाटर देते हैं। इन द सेम वे स्प्राउट्स को ग्रो करने के लिए इनको मॉइस्चर चाहिए, तो हम उसको मॉइस्ट क्लॉथ के साथ उसको हमने कवर कर दिया। फिर हमने जब नेक्स्ट डे जब हम मॉइस्ट क्लॉथ ओपन करेंगे तो हम देखेंगे एक छोटा सा प्लूमेट ग्रो हो रहा है। अगर हमने ये मूंग दाल ली, मूंग दाल में से ऐसे वाइट सा पोर्शन निकला, तो दीज आर कॉल्ड एज स्प्राउट्स एंड दीज आर वेरी न्यूट्रिशियस, इट कंटेन्स मोर vitamins. The steps for growing sprouts are this: wash, drain, cover with moist cloth and harvest or eat. Okay. Now the food from animals. Animals से हमें कौन कौन सा फूड मिलता है? अभी मैंने आपको बताया, मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, एग्स मिलते हैं, दे आर प्रोटीन रिच डाइट्स। ओके, अब एनिमल्स क्या खाते हैं? एनिमल्स के खाने से ही what animals eat according to their characteristics, we distinguish between herbivores, carnivores and omnivores. Suppose now tell me what is herbivores? Herbivores are the animals that eat only plant products. अगर हमने किसी एनिमल को देखा और हमने कहा ये सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खा रहा है, तो हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? हम उसको herbivores कैटेगरी में रखेंगे। So animals that eat only plant products are called as herbivores. तो अगर हम इसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, तो हम अगर काऊ को देखें, तो काऊ को हमने मोस्टली देखा होगा कि वो पहले तो सारी ग्रास खा लेगी, उसके बाद जब उसकी ग्रास यहाँ पे सारी उसने खा ली तो वो एक साइड पे बैठ के वो क्या करेगी, च्यू कर रही होगी। तो उसका क्या पर्पस होता है? काऊ हैज़ द एबिलिटी टू ब्रिंग बैक प्रीवियस स्वेलोड ग्रास फॉर रीच्यूइंग। वो अपना जो उसने खाना खाया है, वो जो उसने ग्रास खाई है, उसको दोबारा अपने माउथ में लाती है और रीच्यू करती है। तो ये हर्बीवोर्स की ही कैटेगरी में आती है काऊ। अगर हम बटरफ्लाइज को देखें तो बटरफ्लाई में ऐसा क्या है? बटरफ्लाई का जो माउथ है ना, वो स्ट्रॉ लाइक माउथ है। स्ट्रॉ लाइक माउथ पार्ट है
और वो जो अगर हम नेक्टर को देखें, नेक्टर लिक्विड है, तो वो स्ट्रॉ लाइट की वजह से वो फ्लावर के ऊपर आराम से जाती है और वो नेक्टर को सक कर लेती है। और जो हर्बीवोर्स की जो मेन कैटेगरी, मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि उसकी जो हर्बीवोर्स के जो टीथ होते हैं ना, वो बिल्कुल वाइड टीथ होते हैं और ब्लंट, इस तरीके से टीथ। अब अगर हम लायन को देखें तो लायन के टीथ ऐसे तो नहीं है, लायन के टीथ कैसे, ऐसे। तो इसको हम क्या कहेंगे, शार्प एंड पॉइंटेड टीथ। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को हम कहाँ पे लेके जाएंगे, कार्निवोर्स के अंदर। तो कार्निवोर्स आर दोज एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। तो हमने क्या कैरेक्टरिस्टिक बताई, इट इज शार्प एंड पॉइंटेड टीथ। अगर हमने फ्रॉग को देखा, अब फ्रॉग कैसे खाना खाएगी, फ्रॉग ने इंसेक्ट्स खाने हैं, फ्रॉग कैसे खाएगी, फ्रॉग की जो टंग है ना, वो टंग एकदम बड़ी सी वो बाहर निकालती है, उस टंग के ऊपर इंसेक्ट को रखा जाए, जैसे इंसेक्ट आएगा इंसेक्ट स्टिक कर जाएगा तो उसकी हम टंग फिर वो अंदर ले लेंगे, तो उसकी टंग को हम क्या कहेंगे, फ्रॉग हैज अ स्टिकी टंग, क्योंकि स्टिक कर गया इंसेक्ट वहाँ पर। तो कार्निवोर्स के कैरेक्टरिस्टिक हुए। ओमनिवोर्स, अब ओमनिवोर्स क्या है, द एनिमल्स दैट ईट both plant products and even flesh of the animal, they are called as omnivores. See, अब omnivores के टीथ कैसे हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स के टीथ हैं। अब जैसे हमने क्रो को देखा, क्रो क्या है, ओमनिवोर्स है, उसकी कैसी बीक होगी, उसकी बिल्कुल शार्प और पॉइंटेड बीक है। वो अकॉर्डिंगली कौन सा एनिमल या कौन सा बर्ड है, वो क्या खा रही है, उसके अकॉर्डिंग उसके ओमनिवोर्स के टीथ हैं। तो उसके टीथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं। नाउ आफ्टर दैट वी कम टू पैरासाइट्स। अब हमने देखा, कई बार आपने देखा होगा कि कईयों को ना, जैसे रिंग्स, फिंगर्स है, फिंगर्स के बीच में यहाँ पे कुछ वाइट सी रिंग बन जाती है। जो वाइट से रिंग बनी है ना, वो किस वजह से बनी है, वो रिंग वॉर्म, एक फंगस होता है रिंग वॉर्म, उस वजह से बनी है। और वो आकर हमारी बॉडी में, यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर जाता है, और वो उससे क्या होता है, उसका क्या फ़ायदा हो रहा है, जो हमने फूड खाया है ना, जो हमने डाइजेस्टेड फूड, वो हमारा ही फूड एब्जॉर्ब करता है, तो उसको फूड मिल गया और हमें तो वो नुकसान कर गया। अब पैरासाइट्स एक्चुअली, हाउ डू वी डिफाइन पैरासाइट्स? पैरासाइट्स आर द एनिमल्स दैट लिव इन, या तो वो अंदर रहते हैं, दैट लिव इन, और आउटसाइड द बॉडी, या वो बॉडी के बाहर रहते हैं, आउटसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। अगर वो किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाएगा, होस्ट, जो वो इनको एनवायरनमेंट दे रहा है, जो शेल्टर दे रहा है, जो खाने की जगह दे रहा है, वो कौन होएगा, होस्ट। तो पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन और आउटसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी कॉल्ड एज होस्ट, एंड दिस इज कॉल्ड एज पैरासाइट्स। पैरासाइट्स लिविंग इन एंड आउटसाइड। अब जो अंदर रहते हैं उसका मैंने आपको एग्जांपल बताया, रिंगवॉर्म। अब जो बाहर रहते हैं, जैसे कि बग्स हैं, वो क्या कहलाते हैं, एक्टोपैरासाइट्स। जो बाहर रहते हैं, दैट लिव आउटसाइड द बॉडी आर कॉल्ड एज एक्टोपैरासाइट्स, and that live inside are called as endoparasites. I think it is clear to you. Now after that we come to scavengers and decomposers. It is most important topic. हमने देखा कि कोई डेड ऑर्गेनिज्म हमने देखा, तो वो डेड ऑर्गेनिज्म कुछ टाइम के बाद एकदम डिसअपियर हो जाता है। कौन करता है उनको डिसअपियर? स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे डेड ऑर्गेनिज्म आया उसके ऊपर आके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने एक्ट किया और उसको फिनिश कर दिया, नहीं। सबसे पहले उसके ऊपर स्कैवेंजर्स आते हैं। स्कैवेंजर्स मीन्स बर्ड्स आती हैं, बर्ड्स आई हैं और उन्होंने वो फ्लैश ऑफ डेड एनिमल खाया। अब हम भी अगर जब खाना खाते हैं, हम एकदम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। इन द सेम वे स्कैवेंजर्स ने क्या किया, वो जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपलर में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने। अब माइक्रोब्स तो छोटे हैं, अब वो जो सिंपलर फॉर्म है वो उसके बाद जाके माइक्रोब्स ने उनको आके डिकम्पोज किया। जो बची हुई चीज़ है, जो डेड रिमेन्स है, तब वो डिकम्पोजर्स ने आके उनको डिकम्पोज किया। जैसे कि बैक्टीरिया आए, सबसे पहले बर्ड्स आई, फिर बैक्टीरिया आए। तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है।
अब अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन भी करना हो तो हम ये पॉइंट्स बता सकते हैं, एग्जांपल्स बता सकते हैं, दोनों के डेफिनेशंस बता सकते हैं, फिर हम बता देते हैं कि स्टार्ट किसने की, स्कैवेंजर्स ने, एंड किसने किया, डिकम्पोजर्स ने किया। तो जब ये अर्थ को क्लीन कर रहे हैं ना, वो सारे डेड ऑर्गेनिजम्स को एकदम वेनिश कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाए जाएंगे, दे आर कॉल्ड एज क्लीनर्स ऑफ द अर्थ। स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स आर कॉल्ड एज क्लीनर्स ऑफ द अर्थ because they eat the flesh of dead organisms and release the nutrients in the soil। अब बताइए न्यूट्रिएंट्स कौन रिलीज कर रहे हैं, स्कैवेंजर्स के डिकम्पोजर्स? जो एंड में होगा डिकम्पोजर्स। अब इन्होंने अपना डिकम्पोज किया डेड रिमेन्स को, अब प्लांट्स को तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्लांट्स के पास न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं? जो जैसे कोई डेड ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर आके माइक्रोब्स ने एक्ट किया, जब माइक्रोब्स ने एक्ट किया तो क्या हुआ, वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में रिलीज हो गए, उसको प्लांट्स ने यूज किया, तो दे आर कॉल्ड एज क्लीनर्स ऑफ द अर्थ। आफ्टर दैट वी कम टू द फूड चेन। सी व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ एनर्जी इन द नेचर। अगर हम देखें कि सबसे पहले कौन, हम तो प्रोड्यूसर नहीं है, सबसे पहले कौन है प्रोड्यूसर? ग्रास। अगर कभी क्वेश्चन आता है, इवन क्वेश्चन है एक कि योर ममा इज प्रिपेयरिंग फूड इन द किचन, इज शी अ प्रोड्यूसर? इज शी अ प्रोड्यूसर इन द किचन? नाउ व्हाट यू आंसर इन दिस? नो, शी इज नॉट अ प्रोड्यूसर, शी इज जस्ट प्रिपेयरिंग फूड। और वो प्रिपेयर जो कर रही है वो फूड, वो किसकी हेल्प से कर रही है? एनिमल सोर्सेज एंड प्लांट सोर्सेज की हेल्प से। तो वो प्रोड्यूसर कैसे हुई? प्रोड्यूसर तो जो प्लांट सोर्सेज है वो है ना, जो प्लांट्स हैं वो हैं प्रोड्यूसर्स। शी इज़ नॉट अ प्रोड्यूसर, शी इज जस्ट प्रिपेयरिंग फूड विद द हेल्प ऑफ प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। ओके, अब प्रोड्यूसर कौन है? ग्रास। ग्रास है। अब ग्रास को किसने खाया? ग्रास इज ईटन बाय डियर, और डियर को किसने खाया? लायन ने खाया। तो ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर। डियर क्या है? हर्बीवोर। और लायन क्या है? कार्निवोर, क्योंकि इसने तो फ्लैश खाया और इसने क्या खाया है? प्रोड्यूसर को खाया है। तो ये हर्बीवोर है, डियर क्या है? हर्बीवोर। तो डियर क्या है? वो मीडिएटर है, वो ग्रास को खा रहा है एंड इट इज बीइंग ईटन बाय द लायन। तो हम इसको फूड चेन को, अगर हम ये एग्जांपल लें तो फूड चेन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? फूड चेन इज डिफाइंड एज सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर लिंक्ड टुगेदर फॉर फूड। आखिरकार ये ऑर्गेनिजम्स क्यों लिंक हो रही है सब एक दूसरे से? नेचर में क्यों फ्लो ऑफ एनर्जी हो रही है? फॉर फूड ओनली। दिस इज द मेन रीजन। सो ग्रास, डियर, लायन, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड चेन। आप ये लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको डेजर्ट फूड चेन है वो ये ग्रास, जो डेजर्ट है वहाँ पे कैंगरू रैट होती है, तो ग्रास, कैंगरू रैट, इसको किसने खाया? स्नेक ने। फिर कार्निवोर बर्ड मीन्स ईगल ने खाया। आई टोल्ड यू दैट birds are also carnivores, don't think that birds are not carnivores. Grass, rat, snake, eagle is the desert food chain. So how do we define food chain? Series of organisms that are linked together for food is called the food chain. See, if we remove deer, from the food chain, the balancing is disturbed. Nature will be disturbed. How? लायन क्या खाएगा? जब डियर ही नहीं है तो लायन क्या खाएगा? ये भी एकदम डेड हो जाएगा। अब ग्रास है, इसकी पॉपुलेशन, ग्रास तो बढ़ती जा रही है, पेस्ट बढ़ गए, क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, तो ग्रास बढ़ती जा रही है। अब अगर हमें कभी भी फूड चेन को, जो इसकी बैलेंसिंग है, वो नेचर में ख़राब नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बीच में से अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर रिमूव हो जाता है तो उसके जो सराउंडिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन पर बहुत इफेक्ट आता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फूड प्रॉब्लम। इन इंडिया वी सी देयर इज मोर वेरी फूड प्रॉब्लम। अब क्यों है फूड प्रॉब्लम? शॉर्टेज ऑफ फूड एक रीज़न है। एक है कि पीपल कैन नॉट बाय फूड ड्यू टू पावर्टी की वजह से फूड वो बाय नहीं कर पा रहे। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? सिर्फ गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने स्कूल्स के अंदर मिड डे मील इंट्रोड्यूस की है। मिड डे मील से क्या हुआ है
मिड डे मील से जो पुअर पीपल है उनको, जो पुअर इवन चिल्ड्रन है, वो इनकरेज हो रहे हैं स्टडीज़ के लिए, क्योंकि उनको स्कूल्स में मिड डे मिल रहा है, मील मिल रहा है, उनको खाना मिल रहा है, उनको रिसेस में खाना मिल रहा है, तो वो इनकरेज होते हैं कि हम पढ़ेंगे। और सेकंड क्या बेनिफिट हुआ मिड डे मील से, हमने जितनी भी फूड की प्रॉब्लम है हम वो भी सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये फूड है, पीपल बाय नहीं कर पा रहे हैं पॉवर्टी की वजह से फूड। तो अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा, हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ मॉडर्न फार्मिंग से। हमने जैसे बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, मॉडर्न फार्मिंग की हेल्प से हमने क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा ग्रो किया। सीजनल फ्रूट भी नहीं है, हमने तब भी ग्रो किया विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब अगर हम देखें कि हमने ग्रो तो बहुत सारा कर लिया, अब स्टोरेज भी तो चाहिए। अब हमने यूं ही स्टोर कर दिया, उसको प्रॉपर्ली हमने स्टोर नहीं किया, तो पेस्ट आ जाएंगे तो वो सारी ग्रोथ वहीं के वहीं ख़राब हो गई। तो वी हैव टू स्टोर ग्रेन्स प्रॉपर्ली ताकि वो पेस्ट से बचे रहें। थर्डली, वी शुड नॉट वेस्ट फूड। Mostly kids are doing this. They take food and they waste the food. See, there are so many people who cannot get food. They cannot even buy the food. So don't waste food ever. Thank you for this. How you like it?